मुकेश जी ने ना अपना महाभारत का वो तीरों वाला जो है, वो उन्होंने घर अच्छा, पे रखा है अपना। वो बेड यू ती मीन, वो जो तीरों की शैया। आई Crime is फाइंड too इट सर much. Even in Netflix and in other channels, OTT, there is too much of crime. But थ्रिलर मुझे है, लगता क्राइम है ड्रामा। people are not experimenting or taking risk. अगर उस तरह की किसी नॉवल पर बेस्ड कोई कहानी बनाएं या वैसा कुछ करें तो मे बी पीपल विल लाइक. आई Panchayat is नो। a typical Doordarshan kind of subject, like name, fame, money, signing autographs. All that is secondary. During those days, there was a tendency with all directors to take the entire scene in one master shot. वेलकम टू मेकिंग सेंस। टुडे आवर गेस्ट इज ललित परिमू जी। नमस्कार ललित जी। धन्यवाद नमस्कार, ज्वाइन नमस्कार करने। नितिश जी. फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आपका लास्ट मंथ बर्थडे था। Thank you. एंड हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस It's my pleasure. एंड गिविंग योर टाइम। सो सर, आजकल कहाँ हैं आप मुंबई, मुंबई. जी, अच्छा, अच्छा, मुंबई में हूँ. and what's going on? You are into films, OTT और क्या? I mean, what is going on recent? हाँ, सभी कुछ चलता रहता है. टेलीविज़न भी है, ओटीटी भी है, फ़िल्म भी है और मेरा अपना जी, एक थिएटर ग्रुप है, नट समाज के yes, नाम से. तो उसमें yes, भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है. रिसेंटली वी जस्ट डिड 2 plays, shows of 2 plays, both written and right, directed by me. And I right. finished one shoot for a OTT show called Operation Safed Sagar. And I'm shooting next month for a feature film and a TV show also. Okay, and feature film, you have written a feature film and No, no, I'm not written. I'm acting in that. Yeah. right, okay, yeah. So you have multiple hats to wear. Yeah, must be Yeah. very busy, Lalit ji. Uh, and the explosion of these different platforms and amount of content and choices must be very exciting times for you, Lalit ji. Yeah, in a way, yes. But after a point, it's like a job. You are in it and you have to do it. You don't do anything else. You're into acting, you're into directing plays, you're into interacting with youngsters, and you are shooting and sometimes studying and keeping yourself busy with new ideas and Okay, involved in some literature, study of literature, or film book and philosophy, whatever my right, interests are. So that way, right. keep yourself engaged. Interesting. So, uh, I know it must be a long time back. So, what was your आपका पहला significant break कब था? What was it as an actor? Yeah, I Or belong to Doordarshan days. So significant break to हम कह सकते हैं. Himalaya Darshan was one TV show in right, 1988. And after that, series of television shows came up. उसमें more significant series were Mela Aanchal was one very prominent show based on Phanishwarnath Renuji's novel. And it was in 88, 89, 90. These years were very busy for me yeah, and I was like noticed as a television actor. During those days, I was in Delhi. So Mela Aanchal, Himalaya Darshan, स्पेस सिटी, सिग्मा, हजार घोड़ों का yes. सवार, अपना अपना आसमान, कपाल कुंडला. These were the shows which were done during those days. उस जमाने के जो कैरेक्टराइजेशंस थे, जैसे लोग थे, जैसे सीरियल थे, जो सोशल कंडीशन थी और आजकल जैसी है, जब आप ओटीटी या फिर इन दूसरे फ़िल्म में इसमें काम करते हैं, डू यू सी अ स्टार्क डिफरेंस इन हाउ इट इज़ कैरेक्टराइज्ड एंड रिटन नाउअडेज़? We see the difference in the environment, you see, and अच्छा, yeah, and the kind of people who were involved. We see the difference and their approach. We see the difference. But so far as your own acting style or your own approach towards the craft of acting is concerned, उसमें कोई बहुत ज़्यादा difference तो नहीं देखेंगे. पहले ये था कि everything was like a family setup. You know, we used to become very friendly with each other, the producer, director, writer, cameraman, and it was more राइट, like a theater ensemble unit. Lot of राइट, jokes and lot of interactions, visiting each other's houses also, and reliving certain interesting moments of shooting and राइट, being in touch. Things have राइट, changed first after satellite television and after OTT. It has become something like a pure business world. So, first राइट, of all, even the directors who work and the writers who work and the actors who work, they are not very friendly or very known to each other. बस They know या the work of one another
and they Yeah. know what they have to do, and they know how they have to draw or extract work from a particular professional. But there is not much interaction these days, and life has become so fast that after shooting, "तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ," and moreover, after the world of WhatsApp, when phone calling has become less, everything is communicated through messages, and through messages we talk, through messages we we announce that we are alive and we are coming on the shoot. So sometimes I Yeah. wonder that if someone passes away, nobody will come to know. Yeah, people Yeah. will come to know through news and all. ये है Yeah. कि पहले तो घर भी जाया कर, और जी, अगर जी। फोन नहीं है किसी के पास, तो प्रोडक्शन का आदमी घर जाता था, घर वालों से बात करके उसको बताता था, मैसेज छोड़ता था। तो वो कल्चर चेंज हो गया है। ये दैट इज़ करेक्ट। बहुत बड़ी बात है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकली थिंग्स हैव मूव्ड सो फास्ट, सो फास्ट एंड सो एडवांस्ड आर थिंग्स नाउ दैट वी कांट इमेजिन। लाइक आई एम टॉकिंग ऑफ 80s, things were very simple at that time, and those Yeah. who were doing television shows, mostly the directors, not the cameramen, and sometimes cameramen also, they were learners. They were learning things. Like, television was new for them. Some cameramen had come from film world. They had no good experience of shooting for a video camera. They were That is experimenting, and there were yeah. sometimes glitches, sometimes faults, and sometimes reshoot also used to happen. So everybody was learning. Television was Yeah. new for everyone. So, and things were slow. Maybe life was also slow, and Yeah. things were moving very slowly. Probably only the people who were not learning and were great in the craft were the writers in those days, isn't it? All good writers actually ended up writing for Doordarshan, and the quality of content. I mean, even if I see some of the dramas which are like in Katha Sagar and all, they are still relevant. Lot of it is Yeah, socially but a relevant. serial like Katha Sagar had stories from great literary giants, which Correct. were Correct. translated or transformed into screenplays. Interesting place. Correct. And Correct. many of the stories were based on certain very important and well-known novels. Like, I That have is done correct. so many novels, I mean, which were translated into screenplays. So original story was already great, and Yeah. then the adaptation to the screen world was done by some good writer. And the number of good actors available to work on Doordarshan. So Definitely, yeah, yeah, these yeah. two and those two things probably now are so different ki everything is like a They you were have among to the write a actors. thriller, See, crime among the actors, drama. what happened? Some people like me who came from theater, they had to prove themselves. Some people came from cinema, and they were not getting good work in cinema, so they had to prove themselves in television. So Mm, everyone had to prove themselves, and television but actually gave an opportunity to both kind of actors: those who were coming up from theater and trying to do something in front of camera, and those who were in Bombay already spent much of their time trying to do cinema but not getting much work, and they shifted their attention to television, and television welcomed them. This that way is we had two kind of actors. interesting. And also, I mean, talking on the same point, when Doordarshan serials were being made, apart from the big giants like Ramayana or Mahabharat, the others were mostly family-based drama or what is happening socially around. And even though it was purely drama, people would cry and feel the same emotions with the if you play the same kind of drama now, people would get bored. So even the बट thriller मुझे है, लगता crime है drama, पीपल आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग और टेकिंग रिस्क. अगर उस तरह की किसी नॉवल पर बेस्ड कोई कहानी बनाएं या वैसा कुछ करें, तो मे बी पीपल विल लाइक, बिकॉज वन right? थिंग इज डेफिनेटली देयर, दैट टेक्नोलॉजिकली वी हैव मूव्ड ahead, so technically it will be definitely a better work, but Yeah, content wise somebody should make an experiment, somebody should yeah. try bringing back those days with some kind of How did writing, you you know. find 12th fail? How did you find 12th fail? How did I find which one? 12th fail. Ha, 12th Fail, a brilliant film, yeah, a meaningful वो film, book के yeah, ऊपर yeah. ही हाँ, that was made on the book and mostly the drama part of it. That's why Uh-huh. probably A relevant uh, subject break, because, yeah, yeah, our youth, particularly those who want to appear for IAS and all that. So for them, it's very good, and it's a good film. Yeah. yeah. 12th fail और पंचायत are like a breath of fresh air Panchayat, जो कि Panchayat उस is टाइप also a की very good. स्टोरी या उस टाइप के स्टोरीज बोल रहे हैं जिस टाइप की स्टोरीज एक्चुअली Uh-huh. इंडियंस को बाय कोर पसंद है. Panchayat आई is नो a typical Doordarshan kind of subject. Well made, करेक्ट well करेक्ट written.
something like Malgudi Days or even एग्जैक्टली Wagle Ki Duniya, something like that. एग्जैक्टली ये थ्रिलर का और क्राइम ड्रामास का पॉपकॉर्न खत्म हो जाए तो कुछ सात्विक हाँ, हाँ, स्टोरीज मैं ऐसे एक्चुअली कहना चाहता हूँ ये क्राइम मतलब एग्जैक्टली crime आई is फाइंड too इट much. Even in Netflix and in other channels, OTT, there is too much of crime. Are एग्री actually people so much criminally ओरिएंटेड आज ऐसा हो गया है, मैं तो नहीं देख पाता। मुझे तो इवन टेररिस्ट वाली टेररिस्ट के या सब्जेक्ट भी पसंद नहीं आते हैं। कभी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगता या कि थॉट मतलब या ग्रूसम एंड क्या बोले ज़रूरत क्या है दिखाने की? अगर या है भी या कुछ क्रिमिनल है तो भी क्या है? बट ऐसा एग्री बोलते हैं ये चैनल वाले हमने सुना है ऐसा बोलते हैं कि वही चलता है, वही चलता है। सो जो चलता है एनी स्पेसिफिक रोल जो आपने किया अभी तक और जो आपको लगता है आपका बेस्ट रोल वेर यू कुड पोर्ट्रे एज एन एक्टर आपका हाँ, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कई रोल्स हैं एक्चुअली जैसे जी मैंने एक नॉवेल एक सीरीज़ का ज़िक्र मैला आंचल दैट वाज़ अच्छा इनिशियल डेज़ में 90 में फणीश्वरनाथ रेणु की नॉवेल पे आई प्लेड अ डॉक्टर। मेरे लिए इसलिए वो यादगार है बिकॉज़ आई हैड रिसेंटली कम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड एंड आई वाज़ अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ एन एक्टर स्लर्स की मेथड एक्टिंग प्रैक्टिकल भी किया था और इंस्पिरेशन भी था हॉलीवुड के बेस्ट एक्टर्स का और डॉक्टर का जी रोल था गांव में शूटिंग थी तो आई एक्चुअली ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इनटू अ डॉक्टर दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी आई वाह लिव्ड लाइक अ डॉक्टर wearing that apron and having a stethoscope and checking patients like I used to do these mock scenes and the local people they used to help me and my friend actors also so that I remember very nicely. That is one character which I cherish. राइट Was in one show for Star Plus. That was Kangan. It was produced and directed by Asha Parekh ji. And I had a very interesting role. I am a very shrewd businessman and who falls in love with a girl. And then the girl doesn't like him, but how he manipulates and makes her fall in love is the whole story in a very shrewd way. So इंटरेस्टिंग this character had a dual personality. Outwardly, he was a very gentle and a very nice man, but inside he was a very villainous. या So playing that was not only a challenge but uh, a very creatively satisfying role. The show didn't last more than 50 episodes, but I enjoyed playing the role. because it went against your nature is it to be that negative Because character it and it made me think as an actor. It made as an actor me do some research work. It forced me to apply some more skills of mine this way. Yeah. they say ki success in this film industry or this mostly the industry of TV and film is staying ready. So any proposals जो आपको आए थे लेकिन आप कर नहीं पाए लेकिन for some whatever reason वो किसी और एक्टर को गया and that role has become big or other way around. You were parachuted into a role which you actually were last minute approach और ऐसा कुछ हुआ था कभी? हाँ, ऐसा ऐसा तो कई जगह हुआ है। इवन दीजिए बेलाचल भी एक वही है। इवन शायद शक्तिमान में भी वैसा ही था। समबडी एल्स वाज़ अप्रोच्ड इनिशियली। ऐसे कई शोज़ में हुआ। एक गिरीश कर्नाड के साथ सीरियल है अपना अपना आसमान। उसमें आई वाज़ it was shot with two other actors before, but the director was not happy. Something happened, but then I was got in because the writer wanted me to be there. Writer wanted me to role. Satyendra जी Sharat ji, very well known writer, जो बहुत बड़ा नाम थे। तो ऐसा हुआ है। ये मुझे याद नहीं आ रहा कि I have not accepted a role and then that film or show became big. ये मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसा। for upcoming actors because a lot of people aspire to act without even knowing that actually it is not just sitting in front of camera, it is more than that. हम्म हम्म So हम्म। what advice you would give because you have seen the full See, platter from Darshan days to हाँ till हाँ today. हाँ हाँ बिल्कुल I started from the age of 18 and I mean maybe nature was helping me because I learned everything step by step and I learned by trial and error. I learned by making mistakes. I somehow had this feeling that I must do theater. So my advice would be that theater one should do. You have to do Still, theater. You have to learn still your dramatic. skills. It's very necessary. Unless and until you are from a big film background, you can afford to go some American Institute or London Institute, spend couple of years there, get trained in filmmaking, and then come and
do acting. You're from childhood, you are into that environment of filmmaking, so that everything is very natural to you. This only applies to people who are from the film family. But people who come from normal middle class families, they have to go step by step. First thing is theater, and then after doing at least 3-4 years of theater, one should try looking for better opportunities like television and films and Yeah. whatever the other areas we have. And another point which is important is that never stop learning. Today, everywhere, in every department of businesses, everyone is learning. There is a famous statement that you have to learn, unlearn, relearn, isn't it? So here you have to keep on learning all the time, even till my age or till death. You keep on learning. Right. So that one should not stop. And if you keep on learning, you will always attract work, attract people, and attract projects, because inside you are prepared. Inside you have created an environment, a platform where outside people will want to work with you. So one has to live like an artist. The way these singers, musicians, instrument players, mostly from the classical background, they generally keep on learning, practicing 4 hours, 6 hours a day. That is the way an actor should do. Generally, actors stop learning and bask on the glory the moment they get some kind of success, and then the descent begins. And then they only focus on the business part, meeting people, networking, creating projects, and whatever, Yeah. PR work and other things. I somehow think that as an artist, you should not get suppressed. The art within you should be respected and honed all the time. Right. Right. And how Because did you? I very strongly believe that the real pleasure is that only. All Yeah. other pleasures connected with being an actor, like name, fame, money, signing autographs, all that is secondary. The first is the pleasure or the aesthetic pleasure. The aesthetic pleasure which you derive by being on stage or by being in front of camera. If that is deprived, then you're just like a commodity. Yeah. Interesting you say that. Did you find difficulties in adjusting from theater to film in terms of the expressions and how to play them for audiences standing next to them and doing it for camera? Yeah, it was not difficult. Rather, it was like one had to adapt it. There was a phase when adaptation was required, because we used to get some tips from the cameraman sometimes that, see, it's a close up Right. and your hands are moving like this. So I Right. told the cameraman that then I must know the shot. He said, yeah, that's your right. You should Even the know if length. it is a long shot or it is a mid shot or a. So this begins the first learning. So Interesting. in theater, you begin from the scene one and go on till scene last scene. In front of camera, when you have to work, maybe you're doing the 12th scene first. So that way, to remember the emotional memories, it is a kind of adaptation and a challenge required, which needs some kind of experience. Like from initial days, it was tough, but then this is what an actor keeps on thinking: how to do it, how to do it. And then in the next project, he does it. Another area was generally the close-ups, because I used to Right. feel very um, what to say, little stiff when after the master shot was over. During those days, there was a tendency with all directors to take the entire scene in one master shot and then go for OS shots and close-ups. So master shot used to go nicely, but then after a break, a little bit of lighting and a gap, you're losing the connection of this Correct. emotion. Then one had to sit for a close-up. That used to be difficult initially. So I took tips from directors, from senior actors, that how to do, what to do, and then slowly I managed it. Rather, I remember reading one autobiography of Balraj Sahni. He also had faced the same problem, that he used to become like stone when giving close-ups. And he didn't give a clear answer, but he mentioned this problem. And then I realized that yes, everyone has faced this problem in one's life. So then what you have to do is like remember the scene throughout. Remember the scene when the lighting is going on for the close up. Do that scene again and again in your mind, and then be Yeah. ready for the close up. Same thing happened for dubbing. Dubbing initially was also very difficult. Yeah. While shooting, you were involved completely. While dubbing, Correct. you're not involved. There is not another That actor too in front after of a you. period of time. Yeah. Yeah. So then slowly one learned and then one started getting adapted. That's Right. how it is. Uh,
And especially the additional challenges is when you play characters like in Shaktiman, which is supposed to be a specific tone, which is not a normal tone, little हाँ, करेक्ट, करेक्ट। a different For tone. that, in और dubbing, one had to work little harder. I yeah, really used to और get into that zone, psych myself, become that character, and then start dubbing. अ, और शायद यही रीजन है कि अंदाज अपना अपना जैसी पिक्चर फिर से नहीं बनी। व्हाट डू यू थिंक हाँ, सर, ऐसा है? अंदाज़ अपना-अपना में क्या बात थी मुझे याद नहीं है। राजकुमार अंदाज में संतोषी की फ़िल्म है ना? सलमान खान की पिक्चर थी, राजकुमार संतोषी जी ने हाँ, डायरेक्ट की थी। तो आमिर खान वो एंड पूरा सलमान खान ना? हाँ, पूरा पिक्चर है ना, कार्टूनिश एक्टिंग था। हाँ, बट इट हाँ, मेड हाँ। सेंस, बट इट वाज़ नॉट रिडिकुलस। और वो जो करेक्ट। बैलेंस था उस पिक्चर में सर, वो बाद में अभी-अभी फॉर एग्जांपल वैसे देखा जाए तो जाने भी दो यारो भी थोड़ा-सा कैरिकेचरिश, कार्टूनिश, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। उस मूवी ने जितना अंदर, तो फिर वो टोन ही मेंटेन नहीं करता था, क्योंकि एक्टर इमीडिएटली नेक्स्ट टाइम जब 15 दिन नेक्स्ट नेक्स्ट शेड्यूल में आता है, तो वो वाला टोन कैप्चर करने के राइट, लिए राइट। या हाँ, आई थिंक यू आर राइट कि ये भी एक माइंड में रीज़न है, हाँ। लॉक करना पड़ेगा एंड देन कांस्टेंट। कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। या या इंटरेस्टिंग जी। हालाँकि बड़ी फ़िल्में ऐसी बनी हैं, मुग़ल ए आज़म की, उसमें भी जी, कंसिस्टेंसी नहीं, लेकिन वो डायरेक्टर साहब पीछे पड़े रहते थे और मूड नहीं आ रहा है, एक ही शॉट हो रहा है, 2 शॉट हो रहा है। ऐसा हमने सुना है मुग़ल ए आज़म इस तरह से जी, बनी है। 8 साल इसीलिए लगे हैं। जी। ड्यूरिंग आपका इनिशियल फेजेस में फर्स्ट टाइम आपने कुछ रोल्स किए हो, फर्स्ट टाइम आपको किसी ने पब्लिक में रिकॉग्नाइज किया है? हाँ, हाँ, बहुत है ऐसे तो। अच्छा नहीं, लगा। फर्स्ट टाइम सर, हाँ, सबसे हाँ, पहली फर्स्ट टाइम बार, मुझे याद है। क्योंकि तब तक फर्स्ट आप टाइम एक्सपेक्ट तो नहीं करते। वो शो था पुलिस फाइल से, उसमें मैंने 2 हुँ, एपिसोड किए थे। ये 86-87 में आया था। इवन जी। हिमालय दर्शन में भी तो मुझे याद है, अच्छे से याद है। मंडी हाउस आप में, चूँकि हम खाली वक़्त में मंडी हाउस में ही वक़्त, तब भी चाय पीने की आदत वहाँ थी। तो मैं चाय पी रहा हूँ, एक दोस्त के साथ हूँ और एक ऐसे एक स्कूटर में एक आदमी आके स्कूटर पार्क करता है और स्कूटर जी, से उतरता है। अ, बधाई देते हुए, आपका मैंने वो शो देखा, बहुत अच्छा लगा। इस तरह हाउ से डिड तो यू होता ही। हाउ डिड इट मेक आपको फील कैसे? आप क्योंकि एनएसडी से, तो यू आर इम्यून टू ऑल ऑफ दिस थिंग, ये तो होना ही है, ऐसा था या फिर आपको हाँ, ऐसा ही यू था। ये तो होना ही है और अच्छा, जितना होना था उससे कम ही हुआ है। जी, मैं जी, हाँ, तो जी, मैं तो जी, ये देखिए, मेरे साथ कुछ विचित्र, मैं हादसे से आया हूँ ऐसा नहीं है। मेरे मन जी, में पहले जो है पूरी स्क्रिप्ट मुझे दिखी है व्हेन आई वाज़ इन 11th 12th, और मैं अपने इन विचारों से 10th के बाद मेरे जीवन में चेंज आया। टिल 10th मैं बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में ही गिना जाता था और मेरा हॉबी सिर्फ स्पोर्ट्स था, अभी की तरह क्रिकेट। मैं स्कूल टीम जी, में क्रिकेट खेलता था। उसके अलावा बैडमिंटन, वॉलीबॉल, यही स्पोर्ट्स थे और पढ़ाई। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था जी, और इसीलिए आज तक पढ़ता रहता हूँ। तब मैं फर्स्ट 3, फर्स्ट 4 में आता था अपने स्कूल में। लेकिन इन 10th के बाद कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आए और सडनली फिल्म वर्ल्ड मुझे अट्रैक्ट करने लगा और उसमें स्पेशली मिस्टर बच्चन की फ़िल्में। जी, और जी, मुझे ये लगने लगा कि मेरे मन में ये विचार आता था, ये जो बच्चन साहब कर रहे हैं, ये तो मैं कर सक ये कोई इतना बड़ा काम थोड़ी, इसके इतने फ़ैन जी, हैं, लोग इसके पीछे पागल हैं। उन दिनों तो वो बहुत बड़े स्टार थे। मैं बात कर रहा जी, हूँ जी, 80-81 की। या तो राजेश खन्ना का ज़माना अमिताभ का ही था। तो यहाँ से बीज, सीड अच्छा, फ़ॉर्म हुआ और विचित्र जी, से ड्रीम मेरे मन में आते रहते थे रोज़। मैं डे ड्रीम भी करता था, जैसे दिन में बैठा हूँ कि मैं बॉम्बे जाऊँ, बॉम्बे में फ़िल्में कर रहा हूँ, बॉम्बे के जी, स्टूडियोज़ में शूटिंग हो रही है और लोग मुझे साइन कर रहे हैं, मेरे कपड़े फाड़ रहे हैं, ऑटोग्राफ जी, ले रहे हैं। दिल्ली में भी मैं थिएटर कर रहा हूँ। तो इस तरह के ड्रीम्स या डे ड्रीम्स में देख ये आते जी, थे। मैं ये नहीं कह जी, सकता कि मैं देखता, ये अपने आप ही आते थे और मैं कई बार परेशान होता था कि ये क्या हो रहा है? एम आई मैड और व्हाट? बिकॉज़ कहाँ मैं एक टिपिकल या इंजीनियर का बेटा हूँ, टिपिकल मिडल क्लास फैमिली है, जहाँ हमारे घर में ना स्कूटर है, ना फ़ोन है और बॉम्बे-वॉम्बे जाने का कोई स्कोप और कुछ चांस था भी नहीं, पैसे भी नहीं कि मुझे भेजा जाए। उनके हिसाब से तो मुझे पढ़ाई कश्मीर में ही करनी थी। जी, तो कैसे होगा, क्या होगा? बट हाउ थिंग्स केप्ट ऑन गोइंग इज़ या समटाइम्स या बिग वंडर फॉर मी आल्सो। तो कभी मैं लिखूँगा अपनी बायोग्राफी तो उसमें ये सब बातें जी, जी, मेंशन, बिकॉज़ एवरीथिंग ज वाज़ लेड डाउन फॉर मी इन टर्म्स ऑफ या स्क्रिप्ट, इन टर्म्स ऑफ ब्लूप्रिंट मच या बिफोर, मच बिफोर एंड जी, आई एक्चुअली ट्रेड ऑन दैट ब्लूप्रिंट। एक जी, नक्शा था मन में। ये फिर मैंने बहुत जल्दी रेडियो में, रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट और दूरदर्शन के जो प्रोफेशनल वो, उससे पहले मैंने ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में, उनका अपना एक सेक्शन है ड्रामा का, जहाँ आप हाँ, ऑडिशन देके उसको क्लियर करते हैं, फिर उनकी टीवी प्लेस में काम करते हैं।
तो घर वाले देखते रहते थे मेरा काम। आपके दोस्तों में कौन एक्टर्स कोई ऐसे जो या आपके सर्कल के पार्ट थे जो बाद में हाँ, वो वो भी तो अभी मुझसे तो बहुत आगे, मनोज बाजपेयी है, पुराने दोस्त हैं, आशीष विद्यार्थी जी। भी हमारे दोस्तों में ही थे। इसके अलावा हर्ष छाया भी दोस्त ही रहे, सभी अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं, फ़िल्मों में, हाँ, टीवी में, तो ये आप तो रहा ही है। मैं क्योंकि मैंने उनके भी देखे मनोज वाजपेयी जी के और वो मंडी हाउस का जो ये था वो आप इसी ग्रुप के मेंबर इसी वही जो गैंग है नहीं, एक उस साथ ग्रुप जो में मैं नहीं था। मैं उस जी ग्रुप से मैं उनसे थोड़ा-सा अलग ग्रुप्स थे, जबकि मेरा अपना भी ग्रुप था और जी वो उनका वो एक्ट 1 का ग्रुप था। जब वो एक्ट 1 में काम कर रहे थे, तब तक तो मैं टेलीविज़न में प्रोमिनेंट एक्टिंग कर रहा था। हाँ हाँ मेरे टीवी शोज़ राइट तब तक शुरू हो गए थे। राइट राइट उन्होंने ओके तो सर सारा आप काम दिल्ली से बॉम्बे आके ही शुरू किया है। हाँ, तो आपने इनिशियली मंडी हाउस में इसमें या वहां पे दिल्ली में मोस्टली आपने थिएटर एक्टिंग और ये सब स्किल्स होन किए एंड देन यू लैंडेड इन मुंबई फॉर ये या क्योंकि दूरदर्शन का दिल्ली से भी काफी ज्यादा काम होता था हाँ, आपने हाँ, वहीं से दूरदर्शन का काम मैंने दिल्ली से ही किया है। हाँ, शक्तिमान मुंबई में, अच्छा हाँ शक्तिमान तो मुकेश खन्ना का प्रोजेक्ट है, तो वो जी काम जी तो मुंबई से हुआ। बेसिकली जो मेरा बहुत सारा काम दूरदर्शन से ही रहा है, वो तब मैं दिल्ली में था। जब बॉम्बे आया तो मोस्टली सैटेलाइट टीवी ही शुरू हो गया था, तो मैं सैटेलाइट टीवी में ही काम कर रहा था। तब 52 एपिसोड्स का चलन हो गया, उसके बाद फिर 12, 150, 200, 300 इस तरह के एपिसोड्स। 52 क्यों सर 52 का वीक्स नंबर ऑफ वीक्स या नंबर ऑफ डेज है हाँ, ऐसा कुछ था, 4 डेज़ अ वीक उस तरह से। अच्छा हाँ, अच्छा राइट फिर राइटिंग भी वैसी होती है दैट यू हाँ, राइट एपिसोडिक टू मेक इट या वन लेकिन तब ऐसा नहीं था कि ये एपिसोड कम खत्म हो रहा है तो एक हुक देगा अगले एपिसोड के लिए कोई हुक की पीपल आर पार्ट ऑफ स्टोरी दे विल वॉच द नेक्स्ट वन जी। आजकल आ गए ना हुक देना जरूरी है स्टार्ट हाँ, में हाँ, भी हुक एंड देना ज़रूरी है। ओके सर समथिंग फनी choose what makes sense to you okay I'll give you two choices you have to choose what makes more sense to you समझो आपको प्रपोजल आया है किसी फिल्म का और एक फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है और दूसरी फिल्म का डायरेक्टर बहुत अच्छा है तो विच वन विल यू चूज स्क्रिप्ट, डायरेक्शन में हाइजैक कर सकता हूँ। स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग मॉर्निंग कॉल टाइम या नाइट शूट मॉर्निंग कॉल टाइम, डेफिनिटली। आई डू नॉट लाइक नाउ आई डू नॉट लाइक नाइट शूट्स। राइट आर्ट फिल्म या ब्लॉकबस्टर फिल्म बट यानी अभी उतना डिफरेंस है क्या? फिर भी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म या ब्लॉकबस्टर में भी दैट इज अ बेटर वर्ड हाँ, हाँ, हाँ। नाउ आई विल से ब्लॉकबस्टर फिल्म। डायलॉग डिलीवरी या एक्सप्रेशन सॉरी व्हाट? फर्स्ट क्या है? डायलॉग डिलीवरी फॉर एग्जांपल आपको एक सिचुएशन दिया गया है हाउ व्हाट वुड यू चूज प्रेफरेंस ओवर डायलॉग और एक्सप्रेशन डायलॉग। वन परफेक्ट टेक या 10 सेफ टेक्स मतलब ये दोनों ही सही है ऐसे। कभी ये, कभी वो, ऐसा फिर भी चुनना है तो इसमें वन परफेक्ट इंटरेस्टिंग टेक। या क्योंकि पुराने जमाने में जब वो डब्बी इस्तेमाल होती थी दे वुड रिहर्स 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 एंड ओनली शूट इट वंस इजंट इट अभी क्योंकि डिजिटल है वो कंसेप्ट नहीं है, आप कितने भी शॉट 5 करेक्ट है, कैमरे यही लगा मैंने बोला। बिकॉज़ आप कितने भी टेक कर सकते, स्टॉक के वेस्ट होने का टेंशन, जी जी तो फिर भी वन जी परफेक्ट टेक। या बिकॉज़ वो जो पहली बार जब आप राइटली रिहर्स करके इमोशंस फील करते हैं, वो रिपीट करने हाँ, में हाँ, बाद हाँ। में थोड़े से ये आई एग्री। जी, अ, रिहर्सल्स या इम्प्रोवाइज़ेशन? रिहर्सल्स। यस ये ओल्ड स्कूल या अ, सचिन सचिन गावस्कर या कोहली? यहाँ 3 चॉइसेस है, पिक 3 योर। है ना? गावस्कर। शोले या चुपके-चुपके? दोनों ही सही है, फिर भी आई विल वोट फॉर चुपके-चुपके। आपने लास्ट मूवी कौन-सी देखी सर अभी रिसेंट में? कल देखी मैंने, व्हिच वन? विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन, बिली अच्छा, वाइल्डर की, चार्ल्स लाफ्टन। मतलब देखी अच्छा। देखी वाली है ना? सिनेमा में जी, जाके भी तो अभी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए फ़िल्म हॉल में, शायद छावा देखी होगी मैंने जाके। अच्छा, अच्छा। बट ऐसे हम घर में देखते रहते हैं। ओटीटी पे ये फ़िल्म देखी और बहुत अच्छी लगी मुझे फ़िल्म। जी, जी। बहुत ही अच्छा अ, लगा। लॉट ऑफ थिंग्स टू इन लर्न। मैंने तो देखी नहीं आई नोट इट डाउन आई विल डेफिनिटली वॉच इट इन ओल्ड डेज कौन सी ऐसी मूवी थी जिसने आपके माइंड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आई आई नो फैन फॉलोइंग में अमिताभ आई नो यू सेड हाँ, बट एक हाँ, हाँ। फिल्म होती है जो आप देखने के बाद में यू आर मेस्मराइज्ड यू वो तुम्हारे तो हमेशा 2-4 फ़िल्में थी, वो लॉरेंस ओलिवियर की फ़िल्में थी व्हिच मेस्मराइज्ड मी। उसमें हैमलेट, मतलब आई हैड विजिटेड बॉम्बे फॉर फ्यू डेज़ एंड देयर वाज़ अ फेस्टिवल गोइंग ऑन, और उसमें मैंने ये लॉरेंस ओलिवियर की कुछ फ़िल्में देखी, हैमलेट, ओथेलो, एंड मतलब मोस्टली मुझे हैमलेट और ओथेलो ही याद रहा।
हालांकि हेनरी फिफ्थ भी था, रिचर्ड सेकंड भी था, अच्छा। और का मुझे याद नहीं, बट आई रियलाइज दैट ये एक्टर तो गजब है, मैं तो शायद हाँ। ऐसा कुछ कर ना पाऊंगा अपने जीवन में। वो मुझे उस वक्त मेजर डिप्रेशन में लेके चला गया। आई वॉज एट दैट टाइम perhaps 25 or 26. I was a well noticed television actor, and I used to जी, think that I can give competition to anyone, starting from Bachchan Saab to Dilip Shaw, राइट, or even actors from Hollywood like Robert De Niro and Al Pacino's, because I used to imagine if I have a good script and a good director and an environment that draws work from me, a good director, I can do something competitive. But here was one actor which was beyond my capacity and range. राइट, Lawrence Olivier completely mesmerized me. And then when I came राइट, to know more about him, वो स्टेज पर तो और भी तूफान, सिनेमा में फिर मैंने उसकी और भी फिल्में दी, तो कुछ फिल्मों तो बहुत ऑर्डिनरी सा ही रहा वो, बट शेक्सपियरियन प्लेस में तो ही वाज लाइक मास्टर। स्पीच का, परफॉर्मेंस का, इमोशंस का, ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब ये मैं आज भी कह सकता हूं, मैं उनके जैसा, लेकिन किसी दूसरे एक्टर की टक्स, माहौल और स्क्रिप्ट वैसा होना चाहिए। इंटरेस्टिंग यू से दैट या दैट्स समथिंग क्या व्हिच कैन शैटर योर कॉन्फिडेंस ऑफ या सीइंग समवन आई मीन इससे बड़ा प्रेज़ क्या हो सकता है किसी एक्टर या इसके लिए एब्सोल्युटली, कि हाँ, हाँ। मैं अगर किसी को सैल्यूट करूँगा एक्टिंग में, उसी को जी, कर सकता हूँ और किसी को नहीं कर सकता, बिकॉज़ फ़िल्म में तो ख़ैर, फ़िल्म में आप रुक-रुक के काम करते हैं ना। जी, फ़िल्म में तो जी, बनाया जाता है, गलत टेक्स के बाद अच्छा टेक होता है, बहुत सारे रिहर्सल के हाँ, बाद अच्छा टेक होता है, लेकिन ये आदमी तो स्टेज पर भी गज़ब ढाता था, तो उसके लिए तो मतलब वो रियली वन ऑफ द ग्रेट एक्टर्स ही माना जाता है। हालाँकि राइट, हॉलीवुड में उसको बहुत नहीं मानते, मेबी बिकॉज़ ऑफ सम रिज़र्वेशन फॉर ब्रिटिश एक्टर्स, या तो वो है। जी, जी, जी। मैंने कहा आप ये कुछ मेरे बोल अरमानों में एक अरमान रहे शेक्सपियर जी, को ओरिजिनल इंग्लिश में नहीं, तो मैं उसका एक कॉम्पनसेशन करने अभी अपने थिएटर ग्रुप में डिस्कस किया था कि शेक्सपियर जी, की याद में जी, मोनोलॉग्स की सीरीज स्टेज पर ही, नॉट कंप्लीट प्लेज, बट एक जी, राइटर है जो शेक्सपियर के ऊपर रिसर्च, और वो कुछ कुछ जी, प्लेस के बारे में बताता है, और यहाँ पे दूसरे एक्टर्स उस प्ले से कनेक्टेड जो मोनोलॉग है या सीन है उसको इनेक्ट करते हैं, वो जैसे जूलियस दैट सीजर का फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, या हैमलेट का टू बी और नॉट टू बी, या मैकबेथ का मर्डर सीन, या हेमलेट का वो जो कोर्ट का सीन है, माँ बाप बेटा माँ बात करते हैं, यस, तो यस, इस तरह से कुछ सीन चुन चुन के एक दैट वो वुड बी इंटरेस्टिंग। अपनी इच्छा पूरी कर। जी, जी। और वन मोर फन राउंड फॉर सो आई यूज्ड एआई एक पॉपुलर एआई यूज़ किया और उसको कुछ क्वेश्चंस पूछे मैंने अच्छा, कि द मोस्ट 5 मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स ऑफ दूरदर्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 5th इट रैंक्ड 5th मुंगेरी लाल मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर 4th इज चाणक्य गेस गेस कीजिए पहले 3 में कौन रहेंगे? आई थिंक महाभारत का होना चाहिए, रामायण का होना चाहिए, हाँ, राम ऑफ रामायण, कृष्ण ऑफ महाभारत, और भीष्म पितामह ऑफ महाभारत, चाणक्य तो हाँ, है। तो एआई ने क्या किया है कि जो हाँ, मेन कैरेक्टर ड्रिवन सीरियल्स थे उसके हिसाब से ही रखा है। सो अच्छा, करमचंद इज थर्ड अच्छा, ओके। गेस विच वन इज टॉप 1 और 2 करमचंद दिमाग में आ रहा था, नाम नहीं याद आ रहा था। हाँ, 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 हम्म, तो कैरेक्टर ड्रिवन की ही बात हो रही है ना, हाँ, तो शक्तिमान ऑल्सो होना चाहिए आई थिंक। शक्तिमान एग्जैक्टली वेल डन सो शक्तिमान इज नंबर 1 and number 2 is Swami from Malgudi Days. That's what he says, most ओह! अच्छा, iconic. अच्छा। हाँ, हाँ। So do you agree with pretty much the rating of characters? Obviously, इसमें महाभारत रामायण को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था अच्छा, हाँ। कि शक्तिमान, स्वामी, तो दिस इज़ करमचंद गुड फॉर शक्तिमान भई। शक्तिमान एक्चुअली मैं इन दिनों में भी, कब से, जब से ये यूट्यूब कल्चर आया ना, पॉडकास्ट का जी, आया, तब से जी, मेरे को शक्तिमान और मेरे कैरेक्टर की उस वक़्त नहीं अच्छा, थी, बिकॉज़ आई वाज़ डूइंग सो मेनी अदर शोज़, या, या, एंड आई वाज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर शोज़ आल्सो बाय पब्लिक, नॉट ओनली बाय शक्तिमान। रादर in Bombay, people noted me from other performances, but in small towns, people noticed me from Dr. Jekyll. शायद आप उतना इम्पोर्टेंस अब नहीं दे तुझे रहे थे मिटना बट होगा वो मेरे बच्चों के हाथों। दिल में आपका जो डर है वैसे बाय द वे Godfather। ऑनरेबल मेंशन चैटजीपीटी ने बोला है ब्योमकेश बख्शी विक्रम और बेताल कबीर लल्लू प्रसाद नुक्कड़ में जो है लल्लू जो है अच्छा, ये तेनाली रामा
अगेन इंटरेस्टिंग। दूसरा एक बात पता है कि शक्तिमान के कुछ ट्रिवियास उन्होंने बताए थे। एनी ट्रिविया अबाउट शक्तिमान जो आपको याद है शूटिंग के? वहाँ तो बहुत कुछ होता रहता था। तो सबसे अच्छी बात वहाँ पे ये थी कि माहौल बड़ा अच्छा था। वही फैमिली टाइप का माहौल था एंड अच्छा। द प्रेशर ऑफ शूटिंग वाज़ लेस। इट वाज़ शॉर्ट बिकॉज़ मुकेश खन्ना का अपना एक्सपीरियंस फ़िल्म का है और महाभारत वगैरह का है। तो वी हैड लॉट ऑफ फन, लाफ्टर, इस तरह की चीज़ें तो अक्सर होती थी, बट अभी कोई ऐसा इंसिडेंट इमीडिएटली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट आई या रिमेंबर कि हम लोग आराम से बात करते सेट पे, फिर मेकअप करते आधे 1 घंटे बाद 9 बजे की शिफ्ट में 10:30 11 पहला शॉट होता और मैं जैसे ही अब सेट पे कितने ही लोग पावर पावर, तो मेरा स्वागत भी पावर से ही कई बार, क्योंकि वो पावर वाला जो डायलॉग है वो फर्स्ट 2 एपिसोड के बाद ही हाँ, हाँ, हाँ। तो कोई कोई ये था। कॉस्ट्यूम या कोई ऐसा बिलोंगिंग जो सीरियल से या ऐसी किसी फ़िल्म से जो आपके पास है, ये जो आपने रखा है याद के लिए? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, पहले थे कुछ, बट वो नॉर्मल सूट्स थे, फिर वक़्त के साथ तो अच्छा। सब खराब हो जाता है। आप जी, छोड़ जी, देते हैं, फेंक देते हैं, हाँ। जी। एक ट्रिविया बताना ऐसे अपने शक्तिमान। भीष्म पितामह ने रखा है। भीष्म जी, पितामह अपने मुकेश जी ने ना अपना महाभारत का वो तीरों वाला जो है, वो उन्होंने घर अच्छा। पे रखा है अपना। वो बेड यू ती मीन, वो जो तीरों की शैया। दैट इज़ द शो वाज़ फर्स्ट to credit the stunt safety advisory. Interesting. It was massively popular in Nepal, Sri Lanka, and Russia. अच्छा। वन शुड Shaktiman led विज़िट रशिया। and Shaktiman led to the rise of superhero merchandise in India, and which is so correct. फर्स्ट व्हिच इज़ टाइम ऐसा करेक्ट, या। हालांकि बाद में छोटा भीम ये वो कैरेक्टर्स आए जो बच्चों के लिए, लेकिन शक्तिमान के जो वो थे ना वो इसके ऊपर आते थे, जैसे पिचकारी से लेके सर तो दिवाली के पटाखे से लेके तो खिलौने भी, इवन इजंट इट, वो मर्चेंडाइज। इंटरेस्टिंग हाँ, ट्रिविया। इससे कनेक्टेड इंटरेस्टिंग एपिसोड तो कोविड शक्तिमान। में किसी काम से बाहर निकला था और हाँ। पुलिस वाले आए, कार में आए और उन्होंने बहुत तेज़ी से मेरे सामने रुके और पुलिस वाले ने मुझे देखते ही उसकी हँसी, "अरे! आप?" तो फिर बात-वात हुई, "नहीं, अंदर जाओ, अभी कर्फ्यू है।" तो फिर बात-वात हुई, तो उसके बाद कहने लगा, "बताइए अभी शक्तिमान आएगा बचाने कि नहीं आएगा?" ये सवाल था उसका और वो भी जी, वो बचपन में शक्तिमान बहुत देखता था, मेरे कैरेक्टर से जी। डर बताया। बट ही सिंसियरली लाइक अ किड आस्क्ड कि क्या कोविड से शक्तिमान बचाएगा? I mean, in a way, Shaktiman is a hope. You know that is what या is being sold. Yeah, हाँ, हाँ, maybe in later parts of it, that something magical will happen and my situation will get resolved. बच्चों को वही लगता डेफिनिटली। था। वो बड़ी बात वही है, होप। होप इज़ द बिगेस्ट इमोशन हियर। करेक्ट, करेक्ट। अ, आपका आपके बायोग्राफीज़ में स्टैट्स में एक इंटरेस्टिंग बात, यू आर अ कश्मीरी पंडित, और आप या 80s में वहाँ से कश्मीर से इधर हुए। सो वाज़ दैट पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल चेंज व्हिच वाज़ हैपनिंग या फिर नहीं, नॉट उस वक़्त नहीं निकला, मैं उससे पहले निकला हूँ। बट जी, माय फैमिली लेफ्ट बिकॉज़ ऑफ द पॉलिटिकल थिंग। राइट, राइट। I left because I wanted to study and do theater, but my parents left because of the terrorism. So वो we जो don't आपने have anything there now. We had a house, but father sold it at a very low price, and he राइट, also came here. He's now no more, and we most of us Kashmiri Pandits we are like tourists now. अभी मैं जा रहा हूँ कश्मीर वैसे जी, नवंबर फर्स्ट वीक में वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल है तो आई एम बीइंग कॉल्ड एज अ गेस्ट तो ऐसे कभी कभी जाता रहता हूँ मैं। जी, जी, जी। अ, आपके हैदर के रोल के बारे में भी काफ़ी हमेशा एप्रिशिएट, इवन आई डिड आल्सो वॉच हैदर, और दैट रोल वाज़ रियली इंटरेस्टिंग। उ उसके बारे में कुछ बताएँगे, आपको कैसे मिला था रोल, और हाउ व्हाट वाज़ योर प्रोसेस टू गेट Actually, Vishal is also friend only. He is from Delhi University. हम लोग साथ साथ ही काम करते थे वहाँ पे। जी, तो जो एक नॉर्म he had me in his mind for the role, but he went through a process of casting director and this and that. We met. I राइट, auditioned for that role and he liked it and we were working. But he said कि मेरे मन में आप थे ही। जी, तो चूँकि कश्मीरी फेस भी चाहिए था और जी, फिल्म कश्मीर बेस्ड है, तो बहुत से करेक्ट, कश्मीरी एक्टर्स तो चाहिए थे उसको। करेक्ट, बिकॉज़ दे नो द बैकग्राउंड, या हाँ। दैट वाज़ वेरी वेरी गुड रोल, इट वाज़ वाइडली जी, जी, जी। एप्रिशिएटेड। तो बेसिकली रोशी, हैमलेट में पोलोनियस है वो। हैमलेट ही है बेसिकली हैदर इज़ या एडaptation ऑफ हैमलेट एंड द कैरेक्टर व्हिच आई प्लेड इज़ पोलोनियस, फादर ऑफ ओफेलिया। आई डोंट आपकी डू तरफ वर्क एनीथिंग
Generally, sometimes the production house people, they call up, or sometimes casting directors call up, and they Right. talk about the role, kind of role, the length of the role, the money part. अगर ठीक बैठता तो कर लेते हैं, ठीक नहीं बैठता तो नहीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक्ट मुंबई मुंबई नहीं वैसा नहीं मुंबई आए दिल्ली में तो मैं केवल 10 साल रहा हूँ। I've spent 10 years of my life in Delhi, but राइट here now in Mumbai, it's now 8 and 25, 33 years. 33 राइट years से राइट तो अभी तो हम मुंबई वाले ही हो गए। बाकी हम उस तरह से देखें तो कश्मीरी है। जी कश्मीर जी में जाने का मसता रहता हूँ, चूँकि मैं वर्कशॉप्स करता हूँ, थिएटर करता हूँ, तो अभी भी जी कल्पनाएँ चलती हैं, इमेजिनेशन चलती है जी कि कश्मीर जी में कोई थिएटर ग्रुप खड़ा करूँ या कश्मीर में एक्टिंग स्कूल खड़ा करूँ, ऐसा सोचता रहता हूँ। बहुत वर्कशॉप्स भी मैंने किए हैं वहाँ पे, 5 दिन के, 7 दिन के, बट अभी तक वो कल्मिनेट नहीं हुआ है। सो दैट आई हैव एन जी अपॉर्च्युनिटी टू लिव इन कश्मीर फॉर एटलीस्ट 10 डेज़ इन अ मंथ। ऐसा कोई ग्रेट अरेंजमेंट अगर मेरा हो जाए तो आई वुड लव इट, बिकॉज़ आज तो आप कहीं से भी पीपल कैन कॉल यू फॉर वर्क। यस ज़माना तो यस बदल गया है, तो वी डोंट हैव टू इंटरैक्ट ऑन डेली बेसिस विद पीपल हू गिव यू वर्क। शुरू में फ़ोन राइट पे बात हो गई, फिर मीटिंग करनी है, तो मीटिंग तो आप कश्मीर से भी मुंबई आ सकते हैं। या या तो लेट्स सी, बट अभी तक दिख नहीं रहा है, फिर भी राइट होप्स हैं। यस बिकॉज़ एक मतलब ये थोड़ा ज्ञान की बात है, या एक रियलाइज़ेशन की बात है कि मदर टंग, मदर लैंग्वेज एंड योर नेटिव स्टेट, ये बहुत मायने रखता है। जी जी हम चाहे कितना ही अपने आप को इंडियन कहें या वर्ल्ड सिटीजन कहें, आप जो हैं, आपकी जो मातृभूमि है और जो जी आपकी मदर है, मदर लैंग्वेज है, वो बहुत मायने जी रखती है, क्योंकि आपके जी रूट्स वहीं से हैं। तो जी मैं जब कश्मीर भी जाता हूँ, अभी तो वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम्स ही हैं, लेकिन मैं उनसे जी बहुत ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई करता हूँ राइट कि यही तो ज़बान, तो पोशाक, यही तो खान-पान रहा है बचपन से। तो मतलब आप कितना भी यूनिवर्सल हो जाए, ग्लोबल हो जाए, बट देयर इज़ जी समथिंग व्हिच इज़ लोकल, वो या छूटना नहीं चाहिए। पंडितों के साथ ये एक ट्रेजेडी हो गई। देखिए, जी जी महाराष्ट्र में बहुत सारे मराठी, गुजराती, सिंधी लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में। बेशक वो पूरी तरह से कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का हिस्सा, बट उनका अपनी एक मदर टंग, कल्चर, खान-पान, पोशाक, उसको रखते हुए वो एक कॉस्मो कल्चर का हिस्सा है, या और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी जी दैट जी, इज योर जी। आइडेंटिटी या दैट या इज़ योर, दैट या इज़ यू, जो बिकॉज़ मदर इज़ अ वेरी पावरफुल फ़ोर्स, और जैसे आप भी शायद विदेश में ये महसूस करते होंगे जी कि जी जी मदर टंग, मदर लैंग्वेज जो फिर भी आपका लोकल जो है, चाहे वो गुजराती हो, हिंदी हो, ये बंगाली हो, या वो है। So, sir, before departing, anything finally you want to say, suggest ki what makes more sense nowadays and what doesn't make sense in terms of films, acting? हाँ, सी पर्सनली आई हैव come to the conclusion that films should be made such that they should elevate the noble feelings. The purpose of art since 2000 years actually has been the same, whether it was Right. drama or whether it's music or poetry or painting or a sculpture. It should elevate Yeah. the noble feelings. It should not cater or titillate you for cheap emotions, or should not be like propaganda. Films, as many filmmakers say, that it is a very young medium right now, only 100 years old. So Yeah. it is growing, it is evolving. In terms of technology, it has evolved tremendously. But in terms of serving the society, it lags behind. It doesn't Right. have that altruistic view. It doesn't have that view of G. So I can sum up in 3 statements. Like, it happened with me also when I started as an artist. So it was art for entertainment. When I Right. became a little more mature, understood world drama, world cinema, art became art for art's sake. It was a slogan in French that art is for art's sake. But when I matured more, studied more, and examined life more, I think art is for blessedness, art is for spirituality. So whether it's acting, whether it's writing, whether it's filmmaking, it should cater to the spiritual needs of the masses. Only then it will have its purpose fulfilled. And it's a very, very powerful medium. Its effect is terrific. It can Yes. really sway you in one way or another. Thank you, Lalit sir. Thank you for spending your time, Ji, your thought, thank and you it so was very much. interesting to know you as person. I am so Same happy here. and delighted, to talk to you for this long. I am so privileged and happy. Thank you so much for Thank you so being much. on the making.